میں نے اور آپ نے فیصلے کرنے والے بننا ہے اور مثبت اچھے فیصلے کرنے والے بننا ہے. آمین آمین. اپنی زندگی میں کیا کرنے والے بننا ہے؟ فیصلے. اور کون سے فیصلے؟ اچھے فیصلے کرنے والے. آمین. ہمیں سمجھ نہیں آتی کبھی کبھی، لیکن میں نے اور آپ نے آج کے دن میں سیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اچھے فیصلے کرنے والے بن جائیں گے. آمین. اور آئیں کلام مقدس میں سے پیدائش کا صحیفہ اس کا 4 باب اس کی 2 اور 3 آیت مقدسہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم سیکھتے چلے جائیں گے. پیدائش کا صحیفہ بک آف جینیسس اس کا 4 باب اس کی 2 اور 3 آیت مقدسہ. یہاں پر لکھا ہے، پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا، اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا. چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا. اور پھر 4 آیت میں لکھا ہے، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پلوٹھے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت اور باعث نصیحت ہو. یہاں پر بائبل مقدس فرماتی ہے، آدم اور ہوا کے بچے پیدا ہوئے، اور پلوٹھا جو ہے وہ قائن ہے. پلوٹھا کون ہے؟ قائن. کاہن نہیں، قائن ہے. پلوٹھا کون ہے؟ قائن ہے. اور اس کے بعد کون سا بیٹا پیدا ہوا؟ حابل پیدا ہوا. اس کے بعد کون؟ حابل پیدا ہوا. اور اب قائن اور حابل پیدا ہوئے، اور قائن جو ہے وہ کسان ہے. قائن کیا ہے؟ کسان ہے. مطلب کھیتوں میں کام کرنے والا ہے. کون سا کام کرنے والا ہے؟ کھیتوں میں سبزیاں اگانے والا یا اور جو بھی کام کھیتوں میں کام کرنے والا کسان ہے. اور جو حابل ہے وہ چرواہا ہے. وہ کیا ہے؟ چرواہا. اور اب حابل جب چرواہا ہے اور قائن جو کسان ہے، تو اب قائن جو ہے وہ خداوند کے حضور میں ہدیہ لے کر آیا. قائن خداوند کے حضور میں کیا لے کر آیا؟ کہاں کا ہدیہ؟ اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ. اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ. جو وہ کام کرتا تھا وہاں سے وہ ہدیہ لے کر آیا. وہاں سے وہ اب قائن بھی ہدیہ لے کر آیا ہے، اور اس کے بعد حابل بھی ہدیہ لے کر آیا ہے. آمین آمین. لیکن یہ بڑا اچھی بات ہے، خداوند کا شکر ہو. قائن نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ خدا کے حضور میں ہدیہ لے کر جائے گا، خدا کے حضور میں. اور حابل نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ بھی خداوند کے حضور میں ہدیہ لے کر جائے گا. دونوں بھائی جو ہیں وہ خداوند کے حضور میں ہدیہ لے کر آئے ہیں. لیکن اب ایک کا قبول ہو گیا اور ایک کا قبول ہو گیا اور ایک کا قبول نہیں ہوا. اب مجھے اور آپ کو یہاں پر سیکھنا ہے، ہدیہ دونوں لے کر آئے ہیں. ہدیہ، لیکن ایک کا قبول ہوا ہے اور ایک کا قبول نہیں ہوا. اور اب یہاں پر میں نے اور آپ نے سیکھنا یہ ہے، اب دونوں نے فیصلہ کیا ہے کہ خدا کے حضور میں ہدیے لے کر جانے ہیں، لیکن ایک کا قبول ہو جاتا ہے اور ایک کا قبول نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ذرا دیکھتے ہیں. ایک نے اچھا فیصلہ کیا اور ایک نے، اور اب کون سا فیصلہ، ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. اب قائن کے بارے میں ہے کہ قائن صرف اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ لایا ہے. قائن صرف کھیت کے پھل کا. اور حابل بھی ہدیہ لایا ہے. اور حابل کے بارے میں کیا ہے ذرا سنیے یہاں پر. اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پلوٹھے بچوں کا، اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پلوٹھے، مطلب فرسٹ ون. کون سے؟ اب قائن بھی ہدیہ لایا ہے اور پہلے لے کر آیا ہے. حابل سے پہلے کس نے ہدیہ دیا؟ بلند آواز میں، کس نے ہدیہ دیا؟ قائن نے ہدیہ دیا ہے. اور اس کے بعد حابل آیا ہے. اور حابل کون سا ہدیہ لایا ہے؟ اپنے بھیڑ بکریوں کے پلوٹھے میں سے. اور یہاں پر میں اور آپ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو اچھے فیصلے کرنے ہیں،
ہدیے دونوں لائے ہیں، لیکن حابل کیوں قبول ہو گیا؟ کیونکہ حابل جو ہے اپنی سارا کچھ جو اس کے پاس تھا اس کے پلوٹھے میں سے لے کر آیا۔ اور اب میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آج کی شام میں، جب بھی مجھے اور آپ کو خداوند کے حضور میں ہدیے لانے ہیں تو اپنے پہلے پھلوں سے ہدیے لانے ہیں۔ آمین آمین۔ کہاں سے ہدیے لانے ہیں؟ پہلے پھلوں سے۔ جو سب سے پہلے والا ہے وہ خداوند کو دینا ہے۔ آمین۔ لیکن ہمارا کیا خداوند کو دینا ہوتا ہے؟ جو بچا کچا ہوتا ہے ہم پہلے کہتے ہیں پہلے سارے کام کر کے دیکھو، پہلے سارے کام، اور ہم سارے کام کرتے ہیں اور پھر جو بچتا ہے ہم کہتے ہیں چلو یہ اب خداوند کو بھی دے دیں گے۔ اب تو ایسے نذرانے قبول نہیں ہوں گے۔ جب ہدیے دینے ہیں، جب خدا کے حضور میں نے اور آپ نے اپنے ہاتھ بڑھانے ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو پہلے پھلوں سے بڑھانے ہیں۔ آمین آمین۔ جب خدا کو دینا ہے تو پھر پہلے پھلوں سے کیوں نہیں دیتے میں اور آپ؟ اور حابل نے پہلے پھلوں سے دیا۔ بائبل مقدس کہتی ہے وہ بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے پہلے پھلوں میں سے، وہ بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے پلوٹھوں میں سے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب میں اور آپ اپنے دن کا آغاز کریں، کس کا آغاز کریں؟ تو میں نے اور آپ نے اپنے پہلے پھل یا اپنے دن کا آغاز جو ہے وہ خدا کو دینے سے کرنا ہے۔ آمین آمین۔ دن کا آغاز کس سے ہونا چاہیے؟ کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں؟ سارا دن پہلے کام کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہن ویلے ہو گئے ہیں، ہن دعا کر لینے ہیں۔ پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کرنی ہے۔ یہ اس کا مطلب یہی نہیں ہے ہدیہ صرف پیسوں کا ہدیہ ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں لو جی پادری صاحب ہدیے دا پیغام آج سنا رہے ہیں۔ ہدیے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے، آپ اپنے دن کا آغاز دعا کے ساتھ، بائبل پڑھنے کے ساتھ کریں۔ آمین آمین۔ ہمارے دنوں کا آغاز ہمارا بائبل پڑھنے اور دعا کرنے سے، اس کا مطلب ہے پہلے پھلوں سے میں نے اور آپ نے خدا کی تعظیم کی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اور آپ دوسرے کام کرتے ہم نے خداوند کو جلال دیا ہے، ہم نے خداوند کی ستائش کی ہے، خداوند کی تعظیم کی ہے۔ اور جب میں اور آپ اپنے دن کا آغاز دعا کے ساتھ، ورشپ کے ساتھ، بائبل پڑھنے کے ساتھ کریں گے تو پھر پورا دن میں اور آپ میریکلز ہی دیکھتے رہیں گے، معجزے ہی ہوتے رہیں گے ہماری زندگیوں میں۔ پورا دن عجیب اور جلالی کام جو ہیں وہ ہماری زندگیوں میں ہوتے رہیں گے۔ ہم توقع بھی نہیں کر رہے ہوں گے، ہمارے لیے راستے جو ہیں وہ خود بخود بنتے چلے جائیں گے۔ لیکن کدی کدی یہی کہنے آج میں لیٹ ہو گیا، چھتی چھتی اسی پار جانے پھر پورا دن کوئی برکت نہیں ملتی، کوئی دروازہ نہیں کھلتا، پورا دن بڑی ٹینشنیں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں، پورا دن باس کی ڈانٹ، کام خراب، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہی اگر میں اور آپ دن کا آغاز اچھے ہدیے کے ساتھ خدا کو ٹائم دے کر لیں گے تو پھر ہماری قربانیاں جو ہیں وہ قبول ہوں گی۔ آمین آمین۔ ہماری دعاؤں کے ہدیے جو ہیں وہ قبول ہوں گے، ہماری بائبل ریڈنگ کے ہدیے جو ہیں وہ قبول ہوں گے، ہماری ورشپ کے ہدیے جو ہیں وہ قبول ہوں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، اس سے پہلے کہ آپ اٹھ کر بہت سارے کام کریں، اٹھ کر سب سے پہلا کام خداوند کی ستائش کیا کریں۔ آمین آمین۔ اور حابل اپنے پلوٹھے، اپنے مال کے پلوٹھے بچے جو ہے وہ خداوند کے حضور میں لے کر آیا۔ اور پھر بائبل کہتی ہے، اگلی آیت سنیے، یہاں پر اگلی آیت بائبل مقدس فرماتی ہے اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پلوٹھے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو، حابل کو، کس کو؟ اور میں نے اور آپ نے ایک بات جو یاد رکھنی ہے وہ مد نظر رکھنی ہے، آج دھیان کے ساتھ سنیے گا۔ خدا، ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ خداوند کو ہدیے دیں تو کام چل جائے گا۔ نو، آپ کے ہدیے کافی نہیں ہیں۔ آپ کی قبولیت کے لیے جو سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے خدا آپ کو قبول کرے گا اور اس کے بعد آپ کے، پہلے کون قبول ہوگا؟ آمین۔ کون قبول ہوگا؟ ہم قبول ہوں گے اور اس کے بعد ہمارا۔ اور یہاں پر بائبل مقدس کہتی ہے کہ پہلے خدا نے کس کو قبول کیا؟ حابل کو، اور پھر اس کے بعد اس کے۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں میں بڑا چندہ دینا ہوا، آپ چندہ دیتے ہیں لیکن آپ شاید ریجیکٹڈ ہیں، شاید آپ کو خدا نے قبول نہیں کیا، آپ کے ہدیے بس چرچ آ رہے ہیں۔
कई लोग ਉਹਨਾਂ ਪਾਦਰੀ ਖਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਦਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤਾ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਦਰੀਆਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਰੋਬ ਝਾੜਦੇ ਨੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਤੇ ਐਵੇਂ। याद रखिए आपके चंदों से कुछ नहीं होना। खुदावंत की कबूलियत के लिए जो जरूरी बात है वो ये है कि पहले आप कबूल किए जाएं और उसके बाद आपका हदिया कबूल किया जाए। आमीन आमीन। और जब नीचे पढ़ते हैं ना, नीचे जब 5वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर है, पर कायन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। हाबिल भी कबूल हुआ और उसके बाद उसका हदिया भी, और काहिन नामंजूर हुआ और उसके बाद उसका हदिया भी। और यहां पर मुझे और आपको क्या सीखना है? यह सीखना है कि जब मैं और आप कबूल हो जाएंगे तो उसके बाद मैं और आप जितने भी हदिये लेकर आएंगे, जितनी भी कुर्बानियां लेकर आएंगे, वो छोटी हो या बड़ी हो, वो 2 रुपए हो या 200 रुपया हो, वो 2 दमड़ियां ही क्यों ना हो, जब मैं और आप कबूल हो जाएंगे तो हमारी 2 दमड़ियां जो हैं वो भी कबूल हो जाएंगी। आमीन। उनको भी खुदा कबूल करेगा और मुझे और आपको बरकत देगा। लेकिन जब मैं कबूल नहीं होगा तो उसके बाद मेरा हदिया 50,000 का हो, 1 लाख का हो, 2 लाख का हो, 10 लाख का हो, वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैं रिजेक्ट हुआ हूं। और जब मैं रिजेक्ट हो गया हूं तो मेरा हदिया जो है वो भी रिजेक्ट होगा। और मैं आज आपको यह भी बताना चाहता हूं, हदियों से खुदावंद को खुश करने की कोशिश, पैसों से खुदावंद को खुश करने की कोशिश, खुदावंद को पैसों से ज्यादा आपकी और मेरी जरूरत है। आमीन आमीन। खुदावंद को सबसे पहले कौन चाहिए? कौन चाहिए? मैं चाहिए। खुदा सबसे पहले, मेरे हदियों से पहले मुझे चाहता है। और जब मैं खुदावंद का हो जाऊंगा तो फिर हदिये जो है वो भी कबूल होते चले जाएंगे। और आए अपने हदियों के मामले में अच्छे फैसले लेना शुरू करें। जब भी आप रुपए पैसे का हदिया लेकर आए तो पहले जहन बना के आए कि खुदावंद मैनू भी कबूल कर लें। आमीन आमीन। इसलिए मैं आज आपको यह भी बताना चाहता हूं, सिर्फ इतने आगे नहीं प्लान बनाया करो, एंड पर्स खोलिया जो दिल कीता पा देता। नो, घर से डिसाइड करके आया करें कि मैंने आज खुदावंद के हुजूर में क्या डालना है। आमीन आमीन। कहां से प्लान करके आया करें? कहां से? ये कोई मसला नहीं है वो कितने हैं, ये मसला नहीं है कि वो, लेकिन घर से प्लान करके आया करें। और जब आप घर से प्लान करके आया करेंगे तो फिर आप ये भी कह के आया करेंगे, खुदावंद मेरा हदिया भी कबूल करें और मुझे भी कबूल करें। आमीन। लेकिन आजकल तो हदिया डालना बस हमारा एक रस्म बन गया है। हमें बस ये पता है चर्च जाना है, पहला गीत गाने ने, विच विच दुआवां होनियां ने, फिर कलाम सुनना है, फिर एक चंदे का गीत आना है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चंदा पाना है, फिर दुआ होनी है तो फिर दुआ रबानी होनी थी। आमीन। ऐसे ना इबादत को समझें। इबादत में इस माइंड से आया करें कि खुदा तुम मुझे भी आज कबूल करना और मैं जो कुछ तेरी हजूरी में लेकर जा रहा हूं उसे भी कबूल करना। आमीन। और जब ऐसा होगा तो मैं और आप बरकत में आगे बढ़ जाएंगे। जब ऐसा होगा मैं और आप बरकत में, हाबिल ने यहां पर अच्छा फैसला कर लिया कि वो पेलोठे, वो पहली तरजीह जो पहला था उसे लेकर आया। और मुझे और आपको पहले फलों से खुदावंद की तज़ीम करनी है। आमीन आमीन। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अगर आप बरकत में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आए पहले फलों से खुदावंद की तज़ीम करना शुरू करें। आमीन। अपनी सैलरीज में जो तनख्वाह मिलन ओदे से पहला खुदावंद नूं रखो। आमीन आमीन। पहले किसको रखें? दिन चढ़े तो आपके दिन में सबसे पहले कौन हो? खुदा हो। आपके घरों में शादियां हो तो हमारी शादियों में सबसे पहले दर्जे पर कौन हो? आप खाना खाने बैठे तो खाने से पहले सबसे पहले कौन हो? खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। मैं और आप, हमारे घरों में बच्चे पैदा हों तो बच्चे पैदा होते ही हम सबसे पहले किसको जलाल दें? पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम करना शुरू करें। आए ऐसे फैसले लेना सीख जाएं। और जब मैं और आप ऐसे फैसले लेना सीख जाएंगे तो मैं और आप और हमारी नस्लें जो हैं वो बरकतों में कसरत के साथ आगे बढ़ जाएंगी।
कसरत के साथ बरकतें आना शुरू होंगी, हमारी नस्लों को खुदा बदलना शुरू कर देगा। आमीन आमीन। अब हदिये दोनों लाए हैं, हदिये कायन भी हदिया लाया है और तो हाबिल का कबूल हो गया है और कायन का कबूल। अब देखिए आप जितने भी आए हैं आप सारे हदिये लेकर आए हैं, आपने हदिया डालना ही है, वो थोड़ा है वो ज्यादा है ये मसला नहीं है, लेकिन हदिये लेकर आए हैं। लेकिन कितनी दुख की बात हो कि हम हदिया डालें और फिर रिजेक्ट हो जाए, फिर कबूल ना हो। तो अच्छा क्या है हम पहले से ज़हन बना के आए, अच्छा ये है कि हम पहले से ही पहले फलों के साथ खुदावंद की ताज़ीम करना शुरू करें। आमीन। और हाबिल ने अच्छा फैसला कर लिया, कायन ने अच्छा फैसला। और अब सुनिए, अभी नेगेटिव पे मैं आपको बताता हूं, फिर पॉजिटिव पे बात करूंगा। अब कायन हदिया लाया, तब भी इसने अच्छा फैसला ना किया, और अब फिर ये अजीब फैसला करता है। सुनिए यहां पर क्या लिखा है, जब सातवीं आयत छठी से पढ़ के पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और खुदावंद ने कायन से कहा तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है। अब कायन की कुर्बानी रद्द हो गई तो कायन का मुंह क्या हो गया, कायन का मुंह क्या होगा, मेरी तरफ तवज्जो लगाएं, कायन का मुंह क्या हुआ, कायन का मुंह क्या हुआ। और अब कौन पूछ रहा है, खुदा पूछ रहा है कि तेरा मुंह क्यों। और फिर खुदा उससे कहता भी है कि अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है। कहां पर बैठा हुआ है, दरवाजे पर दबका बैठा है, और तेरा मुश्ताक है, तेरा पर तू उस पर। और अब देखिए खुदा ने उसे बता भी दिया कि गुनाह कहां पर रहता है, कहां पर रहता है। खुदा ने बता दिया कि गुनाह दरवाजे पर होता है और तूने इस पर गालिब आना है। लेकिन कायन फिर गलत फैसला करता है। पहले उसने हदिया ठीक नहीं पेश किया, फिर उन्होंने गुस्सा आया, फिर उन्होंने गलत फैसला लेंदा, फिर उन्होंने गुस्सा आ जाता है कि मेरा हदिया क्यों कबूल नहीं होया। तो साढ़े च भी बड़े आंदे ने, पहले हम गलत हरकतें करते हैं पहले, तो फिर की करने हैं। मैं भी थोड़ी देर पहले ऊपर बात कर रहा था, पता नहीं किसकी बात हो रही थी, तो हम किसी की बात कर रहे थे, तो बात करते करते हम कह रहे थे, किसी बंदे की बात हो रही थी, तो उसने कुछ ना गलत किया, तो हमने उसे समझाया, तो उत्तों सगो सानू ही पै गया, उत्तों सगो। तो हम वैसे ही कह रहे थे, एक चोर ते दूजा है, एक चोर ते दूजा। और हम में से बहुत सारे ऐसे होते हैं, पहले गलतियां करते हैं और बाद में उतो अखा भी माने तू ही होंगे कौन मैनू गलत कहने वाले, ऊपर से गुस्सा करते हैं। अब कायन ने पहले अच्छा बीज नहीं बोया, तो फिर गुस्सा भी करके बह गया, फिर एवं मुंह बिगाड़ के बैठा है। और हम में से भी बहुत सारे पहले वो खुदावंद के हुजूर में अच्छी कुर्बानियां नहीं लाते और बाद में गुस्से करते हैं, बाद में पहले वो सही से काम नहीं करते, फिर डांट पैंदी तो कहते लो मैनू डांटिया, किसी के सामने सारे के सामने डांटिया, किसी का ख्याल ही नहीं किया, पहले गलती क्यों की है। और अब देखें यहां पर इसने दूसरा काम कौन सा किया, ये गजबनाक हुआ, गुस्सा किया। और अब खुदा ने इसे समझा भी दिया कि पुत्र तू गलत कर रहे हैं, तू गलती कर रहा है, और अब गलती को सुधारता नहीं है, फिर ये गलत फैसला करता है। और फिर गलत फैसला पता कौन सा करता है, आए जरा देखें यहां पर क्या लिखा है 8वीं आयत में, फिर ये गलत फैसला करता है। और गलत फैसला ये है, और कायन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि कायन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे गलती ते गलती हो रही है, की हो रही है, गलती ते गलती हो रही है। और मैं अब बताना चाहता हूं, कभी कभी खुदा हमें सिखा देता है कि ऐसा, लेकिन उसके बावजूद हम कर देते हैं। अब कायन को खुदा ने बताया, ये नहीं था कि कायन को पता नहीं था, कायन को खुदा ने बताया कि नहीं बताया कि गुनाह कहां पर बैठा हुआ है, और खुदा ने यह भी बताया दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा, और खुदा ने यह भी कह दिया कि तू इस पर। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी हमें भी गुस्सा आया हो तो खुदा सानू भी कहता है जरा साह ले लियो, जरा की कर लियो, लेकिन यही कहना ना 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 फट छड़ दो मैनू, है की कर दो, छड़ दो मैनू, अज वेखो मैं तुहानू पता चल दसना वा मैं है कौन आ, या अज तुहानू मैं इनू मैं दसना वा, इनू पता चले कि इन्हें पंगा किहदे नाल ले लिया,
इन्हें पता चले इन्हें। और अब कायन भी ऐसा ही है, खुदा मुझे और आपको भी कहता है कि बच जाएं, जरा ब्रेका ला लो, ब्रेका दे पैर रख लो, ब्रेका दे पैर। गुनाह दरवाजे पर बैठा हुआ है, गुनाह तो यही चाहता है, शैतान तो यही चाहता है कि मुझसे और आपसे गुनाह करवाए, लेकिन मैं और आप गालिब नहीं आते। और इसी तरह कायन जो है वो गालिब ना आया, और जब कायन गालिब ना आया तो उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया, उसने अपने भाई को। अब हम में से भी बहुत सारे ऐसे हैं, जब वो गालिब नहीं आते तो वो बहुत सारे गलत फैसले करते हैं, और फिर वो बड़े बड़े गलत काम कर देने। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਜ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। मतलब बहुत सारे गलत फैसले हम एक अच्छी रूटीन के साथ कर रहे होते हैं। हम चर्च आ रहे हैं तो थोड़ी सी कोई बात हुई है तो हम कहते हैं चर्च ही नहीं जाना, घर भाई जाने गुस्सा करके। किसका नुकसान होगा? हम दया यकीन दे रहे होते हैं और पादरी साहब के साथ हमारी कोई गड़बड़ होती है तो कहने दया यकीन नहीं देनी, तो दया यकीन नहीं दोगे तो बरकत की रुकनी है। लेकिन हमें समझ नहीं आती, हम भी कायन की तरह हैं। और इसलिए मैं आज कह रहा हूं आपको, हमने सीखना है कि हमने अच्छे फैसले लेने वाले बनना है। आमीन आमीन। गुस्से अपनी जगह दे, गुस्से बरकत अपनी जगह दे। आमीन। बरकत लो, जिन्ना मर्जी गुस्सा है। आप देखें, आप में से कितने हैं जड़े लड़ाई करके चर्च नहीं आते? लड़ाई हो जाए ना तवार नूं, ते कहने आज चर्च नहीं जाना, आज चर्च ते एवं लड़ाई होए तो एवं गलियां च फिरी जावांगे, या एवं किसी के घर जाके बैरांगे, एवं किसी दे। और ठीक है, रब दे बंदे लड़ाई हो गई है, गुस्सा आ गया, हुण करना की है? हुण करना है वे आओ खुदा दे हुजूर चलिए तो जाके माफी मंगिए। लेकिन हम क्या करते हैं? असि कहने हुण लड़ाई हो गई है, हुण गुस्सा है, तो गुस्से में की करने हैं? एवं इधर उधर फिरते रहने। मतलब हम कायन की तरह के हैं, हम गालिब नहीं आते, हम गालिब असी गुस्से दे विच अपना नुकसान करने हैं या किसी का नुकसान करने हैं। और कायन ने क्या किया? गुस्सा इसको आया हुआ था, मुंह बिगड़ा हुआ था, और अपने भाई को ही कत्ल कर दिया, अपने भाई को ही। हालांकि मैं अक्सर सोचता हूं इसको चाहिए था, इसको ऐसा करना चाहिए था। ये अपने भाई के पास जाता और इसे कहता, भरा हाबल छोटा भाई था, कोई मसला नहीं था। उसके पास जाता, कहता, हाबल यार तू की कीता वे, जेड़ी तेरी कुर्बानी कबूल हो गई तो मेरी कुर्बानी कबूल। तो शायद वो उसे कुछ बता देता, बता सकता था नहीं, वो उसे तैयारी भी बता सकता था। वो कह सकता था, यार मैं इंज प्लान किया, मैं इंज किया तो मैं इंज लैके आया। तेनू पता चल जाता, हुण रिजेक्ट हुई सी, कोई गल नहीं, फिर ओदे तरीके दे मुताबिक ये भी उंजन करदा ते कुर्बानी लियांदा ते भी कबूल हो जानी, भरा नू भी कत्ल करने की जरूरत। लेकिन बस गुस्सा आया, मुंह बिगड़ा, और भाई का। हम में से भी बहुत सारे गुस्से आते हैं, मुंह बिगड़ते हैं, और हम बहुत सारे रिश्तों, चर्च के खिलाफ, दुआओं के, कभी कभी तो हमें गुस्सा आता है, कहने मैं दुआएं नहीं करनी, ऐ पई है तेरी दुआ, ऐ पई है तेरी। यस, हम करते हैं, हम करते हैं, लेकिन ये अच्छा फैसला नहीं है। ये कायन की तरह का फैसला है कि मैं और आप गुस्से के अंदर अपनी बरकतों को खो देते हैं, या गुस्से के अंदर अपनी बरकतों का नुकसान कर बैठते हैं। आमीन आमीन। लेकिन करना क्या है? गुस्सा अपनी जगह दे, दुआ। देखो, मैं नहीं कह रहा दुआ अच्छा है कि हम गुस्सा खत्म करके दुआ करें, लेकिन देखो दुआ च बवांगे तो शायद खुदा दी हजूरी साडा गुस्सा ला ही देवे। लेकिन जो असीं गुस्सा करके दुआ करनी नहीं है तो गुस्सा पारा तो फिर होर उत्ते चढ़ना में। लेकिन अगर गुस्से की हालत में खुदा की हजूरी में आ जाएंगे तो काम थोड़ा सा सुस्त पड़ना शुरू हो जाएगा, काम थोड़ा सा ठंडा। शायद उस दिन पैगाम ये हो कि गुस्सा करना नहीं चाहिए, शायद उस दिन दुआ के जरिए खुदा हमें सिखाए कि माफी मांग ले या गुस्सा छाड़ दे तो हमारा गुस्सा चला जाए। लेकिन अगर आप दुआ में आएंगे नहीं तो बरकत कैसे पाएंगे? अब इसने फिर गलत फैसला लिया और इसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। और अब यहां पर नीचे आए, अब खुदा 9वीं आयत में से पूछता है, तब खुदावंद ने कायन से कहा, तेरा भाई
हाबिल कहां है, तेरा भाई हाबिल। उसने कहा मुझे मालूम, क्या मैं अपने भाई का, हुण फिर गलत फैसला लिया। हुण पुछण कौन डिया वे ते की कहना चाहिए है? खुदा नूं पता नहीं है ते की करना चाहिए है? इहनूं चाहिए खुदावंदा माफ कर दे, गलती हो गई है, गुस्सा बड़ा था तो ऐसे ही भाई को मार दिया है, तो उधर उसे फेंक आया हूं या उधर उसे दफना आया हूं, माफ कर दे। तो खुदा ने क्या कहना था? शायद खुदा माफ कर देता, लेकिन खुदा ने चक्कर दे रहा है कि कर रहा है। और हम में से बहुत सारे गलत फैसले ऐसे ही करते हैं, हम में से बहुत सारे गलत फैसले। और अब देखें, पहले इसने हदिया लाने में गलत फैसला किया, फिर दूसरे नंबर पर गुस्सा करके गलत फैसला किया, फिर तीसरे नंबर पर भाई को कत्ल करके गलत फैसला किया, और अब खुदा पूछ रहा है तो फिर गलत फैसला। और अब यहां पर एंड नहीं हुआ, अब नीचे चलें। खुदा इसे फिर पनिश करता है और खुदा कहता है कि 12वीं आयत में, जब तू जमीन को जोतेगा तो वो अब तुझे अपनी पैदावार ना देगी और जमीन पर तू खाना खराब और आवारा होगा। अब कायन 13वीं आयत में बात करता है। कायन कहता है, तब कायन ने खुदावन से कहा, मेरी सजा बर्दाश्त से देख, आज तूने मुझे रोए जमीन से निकाल दिया है और मैं तेरे हुजूर से रूपोश हो जाऊंगा और जमीन पर खाना खराब और आवारा रहूंगा, और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा कत्ल। और अब यहां पर ऐसा लग रहा है कि कायन को सिर्फ अपनी जान की फिक्र है कि मैं मरना नहीं चाहता, बस ये नहीं है कि मुझे खुदा के हुजूर से निकाला जा रहा है या मैं खुदा के हुजूर से निकल रहा हूं, मेरी मुश्किलें बहुत ज्यादा होंगी, मुझ पर लानत आ गई। उसे ऐसी फिक्र नजर नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कि उसे अपनी जान की फिक्र पड़ गई है कि बस मुझे कोई कत्ल ना कर दे, बस मुझे कोई। तो अब खुदा भी फिर सुनिए क्या करता है। खुदा कहता है, तब खुदावंद ने उससे कहा, नहीं, बल्कि जो कायन को कत्ल करे उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। खुदा कहता है, अगर तू कत्ल ही नहीं होना चाहता, तू माफी नहीं मांगना चाहता, अगर तुझे जरूरत नहीं है कि मैं तुझे माफ कर दूं या तुझ पर रहम कर दूं, और तुझे बस यही फिक्र है कि तुझे बस कत्ल ना किया जाए, तो खुदा कहता है कि तुझे कोई कत्ल नहीं करेगा, तुझे कोई कत्ल। और अगर तुझे कोई करेगा तो मैं उससे 7 गुना बदला लूंगा। और फिर आगे खुदावंद ने कायन के लिए एक निशान ठहराया कि कोई उसे पाकर मार। और अब सुनिए फिर आगे क्या होता है। अब ये हो गया, इसने कोई माफी नहीं मांगी, कोई खुदा के हुजूर में दरखास्त करता हुआ नजर नहीं आ रहा। और फिर आगे क्या है 16वीं आयत में, सो कायन खुदावंद के हुजूर से निकल गया। क्या हुआ? निकाला नहीं। अब यहां पर यह भी नहीं नजर आ रहा कि खुदा ने निकाला कि चल यहां से निकल जा, मैं तेरा मुंह देखना मुझे नजर। अब खुदा ने तो बात की है, खुदा ने तुझे सजा दी है, पनिश दी है, और खुदा ने यह भी कहा कि तो कोई तुझे कत्ल नहीं करेगा। लेकिन कायन खुद ही खुदा के हुजूर से निकल गया, कायन खुद ही खुदा के हुजूर से। और अब यही बात हमारी है, कभी कभी हम भी या हम में से भी बहुत सारे गलत फैसले करते हैं, और वो क्या करते हैं? खुदा की हजूरी से। और मैं आपको बताता हूं, कई लोग ब्रांडेड घर, अच्छा घर की वजह से सुकून होना चाहिए, चर्च होए या ना होए, दुआ होए या ना होए, वो सुकून वाली जगह पर जाते हैं। वो कहां पर चले जाते हैं? खुदा की हजूरी से निकल जाते हैं। कहां से निकल जाते हैं? और थोड़ी देर पहले भी हमने बात की, हमें गुस्सा आए तो हम खुदा की हजूरी से असि कहने इबादत अपनी जगह थे, ऐ भैया तेरी इबादत मैं नहीं करनी मैं। और अब कायन भी खुदा की हजूरी से निकल गया, और जब निकल गया तो वो अदन के मशरक की तरफ नूद के इलाका में जा बसा। कहां पर जा बसा? नूद के इलाका में। कहां पर? जहां अदन था, अदन के मशरक की तरफ नूद का इलाका था, वो उस तरफ को चला गया। और जब उस तरफ को चला गया तो फिर एक और उससे बेटा पैदा होता है, और जब बेटा पैदा होता है तो हनूक पैदा होता है, और वो अपने बेटे के नाम से एक शहर बना लेता है, अपने बेटे के नाम से। और बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि ये भी उसकी गलती थी कायन की, कि उसने इंसानों के नाम को प्रमोट करना शुरू कर दिया।
कौन से नाम को? उसने अपने बेटे के नाम से शहर बनाना शुरू कर दिया, शहर बना लिया। किसके नाम से? बेटे के नाम से शहर बना लिया। और जब उसने बेटे के नाम से शहर बना लिया तो अब उसकी नस्ल चली है, और जब नस्ल चली है तो 19वीं आयत में जब देखते हैं तो वहां पर है, और लमक जो है वो 2 औरतें ब्याह लाया। 2 औरतों या 2 शादियों का कॉन्सेप्ट जो है वो कायन की नस्ल से शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ? 2 शादियों का सिलसिला कहां से शुरू हुआ? कायन की नस्ल से शुरू हुआ। कि कायन की नस्ल जो चल रही थी उसमें से एक शख्स आया जिसका नाम लमक था, जिसका नाम लमक था, और उसने कितनी शादियां की? 2 औरतें ब्याह लाया, 2 शादियां उसने कर ली। कायन की नस्ल से लमक आया और लमक ने 2 शादियां कर ली। इसका मतलब है कायन की नस्ल से 2 शादियों का कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू हो गया। लेकिन जब बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदा ने एक ही रूह बनाई। खुदा के पास और भी रूहें थी, लेकिन आदम के लिए खुदा एक औरत बनाता है और वो हवा थी। और आज भी खुदा का मंसूबा हर शख्स के लिए एक बीवी का है। आमीन। कितनी बीवियों का? मर्द के लिए एक बीवी का और औरत के लिए एक। आमीन। ना खुदा मर्द को इजाजत देता है क्रिश्चियनिटी में कि वो एक से ज्यादा शादियां कर सके, और ना खुदा औरत को इजाजत देता है कि वो एक से ज्यादा मर्द कर सके, शोहर कर सके। एक ही शादी है। आमीन। और मरने तक जिसके साथ खुदा ने मुझे और आपको रख दिया है, मुझे और आपको उसके साथ ही रहना है। बाइबल मुकद्दस में कोई तालीम नहीं है कि तलाक दे दो तो अगले ना ब्याह कर लो। बाइबल मुकद्दस में कोई तालीम ऐसी नहीं मिलती। एक ही बीवी। लेकिन कायन की नस्ल ने 2 शादियां जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी। और फिर आगे चले, और जब आगे चलते हैं तो और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं 22वीं आयत पर बात करना चाहता हूं। और 22वीं आयत में लिखा है, और जिला के भी तो बिलकान पैदा हुआ, और जो पीतल और लोहे के सब हथियारों का बनाने वाला था। और अब कायन ही की नस्ल से हथियार बनाने वाले भी आ गए। 2 शादियों वाले, और फिर क्या बनाने वाले? ये जो चाकू, तलवारें, नोकदार चीजें, तीर शीर या कुछ भी, नेजे, ये कायन की नस्ल से आए। कहां से आए? कहां से आए? कायन की नस्ल से। और अब नीचे चलते हैं, हाबिल जो मार दिया गया, जरा उस पर बात करते हैं। 26वीं आयत, बल्कि 25वीं आयत से पढ़ लेते हैं। और आदम फिर अपनी बीवी के पास गया, और उसके एक और बेटा हुआ, और उसका नाम सेत रखा। और वो कहने लगी कि खुदा ने हाबिल के एवज, किसके एवज? जिसको कायन ने मार दिया था, उसके बदले में एक और बेटा खुदा ने मुझे दिया, और उसका नाम उसने अनूस रखा। क्या रखा? सेत के हां भी एक बेटा पैदा हुआ। यस, दूसरा फरजान दिया, और सेत के हां भी एक फरजान बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उसने अनूस रखा। और उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर, अब कायन से नस्ल आई 2 शादियों, और फिर हथियारों वाले आ गए। और जब हाबिल के इवज एक और बेटा मिला, उससे सेत पैदा हुआ, और सेत से अनूस पैदा हुआ, और अनूस से ये बात शुरू होगी कि लोगों ने यहोवा का नाम लेकर खुदावंद की प्रस्तिश करना शुरू कर दी। और खुदा का ओरिजिनल नाम जो है, खुदा का ओरिजिनल नाम जो है वो यहोवा है। आमीन। आमीन। और यहां पर जो मुझे और आपको उर्दू तर्जमे के अंदर यहोवा जो है, यहोवा नाम जो है वो पहली मर्तबा बाइबल मुकद्दस में नजर आता है। आमीन। आमीन। यहोवा का नाम लेकर खुदा की तारीफ करना शुरू कर दी, खुदा से दुआएं करना शुरू कर दी, खुदा को जलाल देना शुरू कर दिया। और अब यहां पर मैं बताना चाहता हूं, एक नस्ल जो गलत फैसले ले रही थी, उससे 2 शादियों का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, हथियार बनाने वाले आए और अपने नामों के शहर बनाना शुरू किए। और दूसरी जानब जो हाबल के इवज बेटा मिला, जो अच्छा फैसला लेने वाला था, उसके इवज जो बेटा मिला, उससे सेत पैदा हुआ, और उसके बाद अनूस हुआ, और अनूस से फिर क्या हुआ? यहोवा का नाम लेकर खुदावंद के हुजूर दुआएं करना शुरू हो गए। इसका मतलब है जब मैं और आप अच्छे फैसले लेंगे तो हमारी नस्लों में से खुदावंद को ऊंचा और सर बुलंद करने वाले लोग खड़े होंगे।
जब मैं और आप अच्छे फैसले लेने वाले होंगे तो फिर हमारी नस्लों से खुदा लीडर्स पैदा करेगा, हमारी नस्लों से पास्टर्स पैदा होंगे, हमारी नस्लों से एवेंजलिस्ट पैदा होंगे, हमारी नस्लों से खुदा मिशनरीज पैदा करेगा, हमारी नस्लों से खुदा तरस लोग पैदा करेगा, खुदा के बंदे, खुदा की बंदियां पैदा होंगी, और वो ऐसे लोग होंगे जो खुदावंद का नाम दुनिया में मशहूर करने वाले होंगे, खुदावंद के नाम को कौमों में फैलाने वाले होंगे, खुदावंद के नाम को जलाल देने वाले होंगे, ऊंचा और सर बुलंद करने वाले होंगे। इसलिए आए अपनी जिंदगियों में अच्छे फैसले लेना शुरू करें। आमीन, आमीन। आए अपनी आंखें बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे, खुदा मैं अच्छे फैसले लेने वाला बन जाऊं। अगर हदिये लाने हैं तो अच्छे फैसले करके लाने हैं। आमीन, आमीन। आए अच्छे फैसले लें। दिन का आगाज अच्छे फैसलों के साथ, और अच्छा फैसला यह है कि सबसे पहले मैं और आप दुआ किया करें, इबादत किया करें, खुदावंद को ऊंचा और सर बुलंद किया करें। सैलरी मिले तो अपनी सैलरी के पहले फलों से खुदावंद की ताजीम करें। हमें जॉब पर जाना है तो पहले फलों से खुदावंद की ताजीम करना शुरू करें, सिताइश करना शुरू करें। खुदावंद यीशु इस कलाम के वसीला से अपने बच्चों को बरकत देना।